Hello fourth class student, welcome back in our online class. Dear student, we are going to start our new unit number 4, and today we are learning here our topic why poem in English. Why means क्यों. Why means क्यों. When we ask the question, we use the interrogative words. The why is also to interrogative words, and you can see after the why here is the question mark. That's mean when we ask to anyone, so we use the why word. And today's the topic of this poem is also to a why. Okay, here are no poet name for this poem. Okay, so we are going to start without the poet name of this poem. Let's see. Dear student, this is your topic why poem. Okay, let's start this topic. Okay, be focused on your page number 60 and 61. Let's start how to read the poem. Let's see. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by, the by, and the question mark. Okay, you can see the why, and there are question mark. Next stanza is, he wants to know why wood should swing, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. And the next stanza is, he wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sink the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. You will. Okay, it is the combined of you and will. Try. Others no one never yet has found the reason why. So dear student, it is our 4 stanza. Okay, now let's translate this stanzas. Okay, let's see. Dear student, let's translate this poem. Why? Why means क्यों. Why is also to a question word. Why is also a question word. Okay, like what, okay, who. This type of question word is the why. Why means क्यों. When we ask the question to anyone, okay, we use the why. Let's start this poem. First stanza is, I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why no, why not, why by, the by. And the poet want to say, I know a curious little boy, यानी मैं एक curious मतलब जिज्ञासु who ask the question again and again, means which types of child who ask the question, okay, to everybody and every time. जो क्या करता है, हर समय क्या करता हो, क्वेश्चन पूछता हो, ऐसा बच्चा वो कह रहा है कि आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को जानता हूं जो हर समय क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है. जो क्यूरियस मीन्स अ टाइप ऑफ चाइल्ड हु आस्क द क्वेश्चन एवरी टाइम, यानी ऐसा बच्चा जो हर समय क्वेश्चन पूछता हो, जानने की जिज्ञासा रखता हो. ठीक है, यानी कुछ भी जानने की इच्छा रखता हो. दैट्स कॉल्ड अ क्यूरियस. हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा, ठीक है, हु इज ऑलवेज आस्किंग, जो हमेशा पूछते रहता है क्यों. यानी व्हेन वी टॉक टू देम, जब हम उसके साथ बात करते हैं, तो ही आस्क टू अस, ओके, व्हाई दिस, व्हाई दैट, यानी ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे किस लिए हुआ. तो ये सारे क्वेश्चन वो पूछता है. अब देखो कैसे पूछता है. व्हाई दिस, ये क्यों, व्हाई दैट, वह क्यों, व्हाई देन, तब क्यों, ओके, व्हाई नाउ, और अब क्यों.
This type of question he asked to us. Okay, this type of question he asked to us. Do you understand? Okay, be carefully, listen carefully. He asked to us, why this, ये क्यों, why that, वह क्यों, why then, तब क्यों, why now, अब क्यों. That's mean this type of question he asked to us. Why not, why by the why, and ये क्यों नहीं और अब क्यों, ठीक है, और why by क्यों है. तो this type of question he asked to us. And come on to the next stanza. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. And next stanza is, he wants to know, वह जानना चाहता है. कौन? A curious little boy. कौन? जो curious little boy है, वह जानना चाहता है. क्या जानना चाहता है? Why wood should swim. ठीक है, कि जो लकड़ी है वो पानी पे तैरती क्यों है. दैट्स मीन ही वांट टू नो कि जो लकड़ी है वो पानी पे तैरती क्यों है. ही वांट्स टू नो व्हाई वुड शुड स्विम. ठीक है, व्हाई लेड एंड मार्बल सिंक. पर जबकि वो कह रहे हैं कि लकड़ी पानी पे तैरती क्यों है, और जो लेड होता है, लेड मीन से शीशा, ठीक है, लेड मीन से शीशा, एंड मार्बल सिंक. ठीक है, लेड और शीशा, शीशा, ठीक है, लेड मीन से शीशा, और मार्बल यानी पत्थर जो होते हैं, ठीक है, या टाइप्स ऑफ स्टोन. ठीक है, मार्बल, ये पानी में डूबते क्यों हैं. इसका कहने का मतलब है कि जब लकड़ी पानी पे तैरती है तो पत्थर और शीशे पानी में डूबते क्यों हैं. ठीक है, व्हाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, कि सूरज क्यों चमकता है. वो यानी ही वांट टू नो, वह जानना चाहता है कि व्हाई सन शुड शाइन, सूरज क्यों चमकता है, एंड विंड शुड ब्लो, और हवा क्यों बहती है. ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं कि सूरज क्यों चमकता है और ये हवा क्यों बहती है. एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम लोग क्यों खाते और पीते हैं, यानी हम क्यों खाना खाते हैं और पानी को ड्रिंक करते हैं. तो ये सब वो जानना चाहता है. ठीक है, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, वह ये जानना चाहता है कि क्लाउड को कौन बनाता है. ठीक है, वह यह जानना चाहते हैं कि ये जो बादल हैं ये किसने बनाए हुए हैं. एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई, और वो बादल जो हैं जो किसी ने बनाए हैं, किसने बनाए हैं उसको नहीं पता है, और वो बनाए हुए बादल क्यों आसमान में इधर से उधर गुजरते हैं, यानी वो ठीक है, व्हाई दे क्रॉस द स्काई, क्यों वो आसमान को पार कर जाते हैं, यानी वो इधर से उधर चले जाते हैं. व्हाई सिंक्स एंड सन बिहाइंड द हिल्स, क्यों सूरज पहाड़ी के पीछे छिपता है. ठीक है, वो कहता है कि व्हाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स, क्यों जो सूरज है वो पहाड़ी के पीछे क्यों छुपता है. एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई, और ये जो फूल हैं वो क्यों मुरझा जाते हैं. वो ये सब जानना चाहता है. ठीक है, कि क्या है, बादलों को कौन बनाता है, और वो क्या है, क्यों आसमान में गुजर जाते हैं, सूरज क्यों पहाड़ी के पीछे छिपता है, और फूल क्यों मुरझा जाते हैं. He want to know about these questions. Now last stanza is, some of these why, okay, some of these whys are not too hard to answer if we will try. वो कह रहे हैं, फिर poet कह रहे हैं कि some of these whys are not too hard. कुछ ऐसे भी why हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी why हैं जिनका उत्तर देना कठिन नहीं है. ठीक है, some of these whys are not too hard, यानी कुछ ऐसे भी वाई हैं जिनका उत्तर देना कठिन नहीं है. टू आंसर इफ वी विल ट्राई, अगर हम कोशिश करें तो हम इन क्वेश्चनों के जवाब क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं. अदर नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई. ठीक है, और अगर हम कोशिश ही ना करें तो हमें क्या होगा, ये जो वाई है इसका कोई कारण ही नहीं मिलेगा. दैट्स मीन इफ वी ट्राई वी कैन फाइंड आउट आवर आंसर. इफ we try, we can find out our answer, we can know about these whys. हम जान सकते हैं इन why के बारे में. if we will try, अगर हम कोशिश करेंगे. but if we not try, okay, has found the reason why, हम कभी नहीं इसका कारण का पता कर सकते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, कि क्यों सूरज चमकता है, क्यों हवा बहती है, ठीक है, क्यों फूल मुरझा जाते हैं, क्यों सूरज पहाड़ी के पीछे छिपता है. So like these types of questions, why, if we will try, okay, if we will try, we can find out.
अगर हम कोशिश करें तो हम इनका जवाब मिल सकता है। दैट्स मीन पोएट वांट टू से नेवर गिव अप, कभी क्या मत करो, गिव अप मत करो। फाइंड आउट योर आंसर, अपने आंसर को क्या करो, ढूंढो। ओके, अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज आस्क द व्हाई, क्योंकि एक जो अच्छा विद्यार्थी होता है, एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा क्यों पूछता है। दैट्स मीन अगर इफ, ठीक है, ही लर्न अ समथिंग एंड इफ ही हैव एनी डाउट, अगर उसको कोई भी परेशानी है तो वो हमेशा हाथ उठा के कहता है कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। दैट्स मीन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्सेशन इन द क्लास। ओके, ओके, कन्वर्सेशन इन द क्लास, क्वेश्चन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन हमेशा क्या है, जरूरी है। जब हम टीच करते हैं तो टीच का एंजॉय कब होता है, जब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछे। अगर आप हमसे व्हाई पूछेंगे तभी हम उसका जवाब देंगे। दैट्स मीन अदरवाइज वी विल कंप्लीट आवर लेसन, हम क्या करेंगे, ओके, वी विल डिस्कस ओनली आवर टॉपिक। अगर आप पूछेंगे नहीं तो हम सिर्फ अपना क्या करेंगे, टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। बट इफ यू आस्क टू अस वी विल, ओके, क्या करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। वी गेव योर आंसर, ओके, तो हम उसका जवाब करेंगे। हो सकता है कि उस समय हमें पता ना हो, हम घर जाके स्टडी करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, पर हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि हमेशा क्यूरियस बने रहो, अच्छी पॉजिटिव साइड में, ठीक है, क्यूरियस बनो पॉजिटिव साइड में, और उसको क्या करो, अपने क्वेश्चनों को पूछो और उनके आंसर जानने की कोशिश करो। Okay, dear student, I hope you all are understand this topic very well. Okay, we will provide PDF related to this topic, okay, in your class group. Thank you and have a nice day.